So yeah guys, I think so we are live now. So today we are gonna do the JPR Java Programming First TOT question bank, okay? And yeah, for this question bank, we'll just make a folder in order to run the codes. Okay, so let us start making the folder now. Let us make it as UT and we'll open it in our VS Code as usual. And yeah, there we go. Let us keep aside and we'll move to our theory first. So as we can see in the theory, here are some basic features of Java for 2 marks. Okay, as usual, as we know, Java is an object oriented programming where we use object and classes. Okay, and it is in platform independent, means it can be run or it can be run on any of our operating systems available in the market. Then it is again secure, which is like protects us from unauthorized access and all. Then it is robust, means we can handle errors and prevent crashes in this properly. After that, the second is explain the use of throw and throws. Now, this is a crucial point. Like throw, it is an explicitly generated exception in our program where we see against the throw. It is in a kind of exception only, but it is declared in the method, used in method declaration to specify possible exceptions. Now example, we'll take this example of arithmetic exception. Okay, when we divide two numbers, so there we usually use that arithmetic exception. Now we are going to see the example of that as well in our exception for 2 and 4 marks. Then write down the syntax for array declaration and initialization. So where we are initializing that what should be the value inside that array or assigning the value. Okay, so the first for declaration we are like data type, then square bracket and array name within semicolon. Then second, what comes in initialization, same your array name with the new data type which will be there inside your values for all the values. As we know, array is in same data type and it have contagious. Okay, then value 1 2 3 your data here, and yeah, that's all. If you want, you can even give an example here. Okay, after that enlist any two logical operators and two bitwise operators. As we know, these are the most common, so we are using this. So here we can see this is a logical and logical or. Now what is happening here in logical and, it is only returning true if both conditions are true. Sometimes we write this like this. Okay, so if a is greater than b, and yeah, and then b is equals to c, correct? If this both conditions are true, okay, if you can see guys properly, if this both conditions are true, in this case we can consider key, okay, this is running, or it will be gonna execute properly, like return true if both conditions are true. If this is true both of them, so this is gonna return as true, otherwise as false. Okay, and then this logical or, if it returns true if any condition is true. Example, this is my false condition and this is my true condition, so it is gonna return true. It doesn't matter that both the conditions should be true in those cases. Okay, and same here, if you can see bitwise and bitwise or, it performs on bits. Okay, and as we know, here this bits, okay, uh, are like exactly in our variables which we are using. Okay, then what is inheritance? Describe this. Okay, so inheritance is a mechanism where one class acquires the property. So one class acquires the property and method of another class using extend keyword. So here the word extend is important, as we know. Like we can write as A extends, correct? Extends, A extends B. Okay, so here what we are doing, we are extending or acquiring the properties of a class and then with b and all. Okay, so we can give an example here. So as we can see, this is the class. Okay, just give me a sec. There we go. So this is a main class named school, correct? Here there are various properties, so we can say that here there can be teacher, correct?
Then we can say there are students. Okay, so what here it is inheritance doing as we are extending the class student to teacher and then teacher to school. Okay, now how this is happening, let us see example of this first, a basic example. Okay, so here we can see an class named animal, which is further extended as like dog extends animal. Okay, then again the dog is extended by puppy. So in this manner we are going to extend this. Extend keyword means inheritance is being applied to that particular class, and the methods inside that is even like shared with other classes, or they can use them. Okay, now uh, before this, let us move to a second marks next question, which is define class and objects. So even a class is a basic blueprint which we have learned in our Python. Okay, and a kind of template which is used to create objects. Okay, where we create multiple objects and all. And what is an object then? It is an instance of a class. Now see, both are same but with a bit different. So difference. So first, class is an template or blueprint of object. If I want to go from A to B, okay, the way of going is telling the thing what is happening here. So it is in kind of class. Okay, this is the class. Okay, this is my class. Okay, and in this class there are various objects like glass, correct? Glass, bottle, and all. So those are objects. A basic example. Okay, then next, enlisting four inbuilt packages in Java. These are the four main packages. Okay, so like java.lang, which usually has string and maths classes. Then comes java.util, which usually comes with list and scanner. Then java.io for input and output related classes, and java.sql for database connectivity to our JavaScript. Sorry, Java. And then what is difference between error and exceptions, as these two are also very important in our syllabus. So error, it is like uncoverable problem not handled by the program, जो program handle नहीं कर सकता है, that is known as error. Okay, जो रिकवर अनरिकवरेबल प्रॉब्लम रहता है, ओके उसको बोलते हैं एरर. देन व्हाट इज एक्सेप्शन? रिकवरेबल प्रॉब्लम, इसका उल्टा, मतलब जो रिकवर हो सकता है विथ सम एक्सेप्शन हैंडलिंग, करेक्ट? दैट इज नोन एज एक्सेप्शन. सॉरी, हैंडल हो सकता है प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, और जो हैंडल नहीं हो सकता है तो उसको एरर बोल देते हैं. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज एन एक्सेप्शन एग्जैक्टली? ओके, so an exception is an abnormal event that occurs during the program. Okay, when we execute the program, we face such a kind of abnormal exceptions. So how do we are going to tackle that? Mostly those can be tackled with some basic things, like as we can see, your arithmetic exception, which we discussed in that 2 marks. So same here, and disrupt the normal flow of the program. Those abnormal events just break the event or kind of normal flow of a program. So for that we use some exceptions. Now let us use them first. So yeah, for this we are just gonna create a class named exception. Okay, for now, or we can create as demo.java. Okay, inside this we are just gonna write a basic like a public class and all everything. So instead of wasting time, I will just take this code from here. As we can see here, we'll just change the name so to make it as demo, otherwise our code is not gonna run. Okay, yeah, there we go. So yeah, as we can see, first what we did, we made a file named demo.java. Okay, and inside that we have created a basic public class named demo, which is the same file name. After that we have give public static void for basic. Okay, every time we give this to print anything or to process things. After that we have give some variable declaration here and initialization, where we have give to int data type and with variable a and b, and have assigned a basic 10 and 0 integers. After that we have added a try block, where we have added int c should be storing a divided by b. Okay, now here one thing is going to happen, we are adding cause arithmetic exception. Okay, now in this after this try block we have added the catch block, which are having this exception named e. Okay, where if this exception occurs, what is going to happen,
It means cannot be divided by 0. If a number is cannot be divided by 0, then this exception will be called. Okay, or else and after everything of this, the program will be end. So now we are going to save this, and in our terminal, yeah, we are just going to write as java, okay, uh, java demo dot java. Okay guys, and we are going to run this. After running this, we can see a demo.class file is being made here. Okay, so the code here is being kind of transferred or converted into a different this. All the words and keywords are same. A bit difference is that int has mostly byte. It can store byte numbers. Okay, kind of its storage maximum. So the this thing has been here. Then it has declared the a and b as variable var1 and var2, and same with other things as well. Okay, and nothing else changes has been happened or occurred in this. And even the other variable e has been converted into var4 as our this has been compiled properly. Now we are going to run this. So for this we are going to write java and then demo, nothing else. As we can see, cannot divide by 0. So here we have give some basic data 10 and 0. Instead of this, if we write something as 6, okay, and yeah, now let us run this. Control is, now we are gonna compile the code properly, and yeah, we can see it is showing end of the program since we haven't printed the C. So what are we gonna do here? We are gonna print the C here. Yeah guys, so what are we gonna do here? Uh, Answer is this. Or instead of this, we can even write the part C which we saw now. Correct? So yeah, there we go. Okay, Control S. Then we are gonna compile the code again. And yeah, there we can see the answer is 1 after doing these things. So this is how the exception handling program we have implemented. Now we are going to move to the next question for 4 marks, which is explain multi-level inheritance with example. Okay, so for this multi-level, we know there are various classes, and from this we are going to implement this. Now let us take an example here. There is a class named animal. Okay, animal is having another class named dog. After that, and after dog there is another class named puppy, puppy. Each of those classes having various different methods. Okay, like animal is having eat method, then dog is having bark method, and the puppy is having play method. Now what are we going to do here? We are just adding the word extended to just join those class. Okay, so as we know, animal is extending dog, dog is extending puppy. And after that, after doing this 3 blocks of code of joining and all, we are going to implement the last public class, which is public class test. Okay, in our this test class, what we implemented, we just added the driver or initialized key what should be the variable, and we have called all the methods which were there. Okay, in the class puppy, which is our last class, having the characteristics or kind of things of both of the upper class, which was animal. Okay, animal, and our next which was dog. So both methods and characteristics are there in our class named puppy. That for that reason we have like called this class here. Okay, now let us move to our next question, which is draw and explain the life cycle of thread. Life cycle of thread. It came for 4 marks, and sometimes it also comes for 6 marks, like in rare cases. So we have to prepare according to that. And as we know, the first life cycle state, which is new. Okay, new means the thread has been created here, and second is runnable, where it is ready to run properly in our program. Okay, and third is running, which is like executing throughout a program, and fourth, waiting or blocked. Like sometimes we face some issues, so there it is like waiting for the resources, like what should be the further thing in order to proceed. Okay, then the last one is terminated or dead. Sometimes our thread get ends in terms of
what do we say, execution. So here it marks the dead thread. Okay, so let us see the diagram properly. This is a active state. Okay, when we start a thread, after getting start, it can be runnable in the future, or it is running now. Okay, there are two things. After the active state, it can be run out method, means it is terminated, it is like dead kind of. Then we are having three things. If it is running, then what can happen? Things can be blocked. Blocked means acquiring a lock, where a kind of thread has been locked, or if it is not happened, while coming back it has been acquired the lock particularly throughout the program. And the second, which is waiting, it is waiting for a notification, or the notification has been acquired. These are the two cases which we can see in waiting. And the next is time waiting. So the waiting has two properly. One is for notification and second is for timeout notification. So in this time waiting, your things is like timeout notification has been waiting, or it has been acquired properly. Okay, then some theory. The theory is same as usual, which we have saw now. Like in new thread as usual. What we see, a new thread has been created. After creating it in new state, it will be further converted. Okay, or we can see that new thread been running properly. So it has started to run properly in our new this state. Okay, when a thread lies in new state, this code is yet to be run. Yes, it is yet to be run, or has not executed yet. Okay, so there are two things in new state. It is running or not running, or it will be running in future. So to be run, okay, or has not been started. There are two cases in new thread. After that, runnable state. When it is in runnable state, there are various things. Like since it is runnable, it is moved to runnable state. If it can run, so it will be moved here. And in this state, a thread might actually be running, or might be ready to run. मतलब इसमें भी दो cases है. It is actually running, or might be ready to run. एक तो run हो रहा है या फिर हो सकता है. Two cases as usual, nothing difference. Okay, then it is responsible of the thread scheduler to give the new to give the thread scheduler. This is the keyword here, which is important in our paper. Then next, a multi-thread program allocates a fixed amount of time. It usually has a fixed amount of time to each individual thread. मतलब हर thread को अपना एक particular time assigned रहता है, जो कौन करता है? Thread scheduler. As we can see, a thread scheduler. Okay, after that, each and every thread has get a small amount of time to run. मतलब सबका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, पर कितना फिक्स्ड है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. After that, after running for a while, a thread pauses and gives up the CPU. थोड़ा pause करता है and it gives up to what? CPU. Okay, so that other threads can run. मतलब वो जो है टाइम अलोकेट सबको स्पेसिफिकली किया गया है. एक टाइम के बाद वो खुद ब खुद पॉज हो जाता है और सीपीयू को बाकी की थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने का टाइम देता है. So this is how runnable state is working. Then comes a blocked. So the thread will be blocked state in block state when it is trying to acquire a lock. जब वो कोई भी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे वो कौन से ब्लॉक में रहता है? इन ब्लॉक स्टेट. अब इसमें करेंटली द लॉक इज एक्वायर्ड बाय द अदर थ्रेड. जब वो लॉक किसी अदर थ्रेड के द्वारा एक्वायर्ड रहता है, एट दैट मोमेंट द थ्रेड विल बी मूव टू द ब्लॉक टू द रनेबल स्टेट. मतलब जो ब्लॉक स्टेट में रहता है उसको रनेबल स्टेट में डाला जाता है, एंड फिर जो बाकी का प्रोसेस है वो रन होता है. एग्जाम्पल, इफ अ थ्रेड इज इन ब्लॉक स्टेट, बट ये जो थ्रेड है वो वहाँ पे है, बट दूसरे थ्रेड को भी वहाँ पे जाना है. सो इन ऑर्डर टू गो हियर, फर्स्ट दिस थ्रेड हैव टू गो इन रनेबल स्टेट, देन ओनली दिस कैन पास फ्रॉम हियर. सो फॉर दैट रनेबल स्टेट should be there, and the thread should be gone there first in order to come the next or next state, next thread from there. Okay, then waiting state, same as above, a bit different. Just what is the difference? The thread is in waiting state. Waiting state में होता है कब? When it calls wait method or join method. जब वो wait and join method को call करता है तब वो waiting state में होता है. It will move to the runnable state when other thread will notify or that thread will be terminated. जब
वो थ्रेड को जब किसी ने नोटिफाई किया रहता है, और जब वो टर्मिनेट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डेड, it becomes dead. That time it can be moved into the waiting state. Okay. Next, time waiting. So it is particularly regarding the time जहाँ पे a thread lies in a timed waiting state. जहाँ पे वो कब कॉल होता है, जब टाइम आउट पैरामीटर जो एक मेथड है वो कॉल होता है, तब भी कॉल हो जाता है, तब भी वो उस स्टेट में जाता है. A thread lies in the state until the thread timeout is complete और until a notification is received. जब तक टाइम आउट का नोटिफिकेशन नहीं आता, या फिर जब तक वो स्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो वहाँ पे ही रहेगा. इन वॉट? इन टाइम वेटिंग स्टेट. ओके. थ्रू विच मेथड? थ्रू टाइम आउट पैरामीटर. देन फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन से जब भी एक थ्रेड कॉल स्लीप, थ्रेड कॉल स्लीप और अ कंडीशन वेट्स, तो उस टाइम पे वो जो है वो टाइम वेटिंग स्टेट को कहा, स्टेट में जाता है उस टाइम पे जब वो स्लीप पे रहता है, फिर एक कंडीशनल वेट पे रहता है. ओके. एंड देन लास्ट, टर्मिनेटेड स्टेट. जब भी एक थ्रेड टर्मिनेट होता है या फिर डेड होता है, किस रीजन की वजह से? ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट, बिकॉज इट एग्जिस्ट नॉर्मली. वो नॉर्मली खुद ब खुद एग्जिस्ट हो जाता है आफ्टर द वर्क इज बीन डन. सो इट इज वर्क इज डन, then he will be removed from there or will be dead. Okay. This happens when the code of the thread has been normally has been entirely executed the program. जब पूरा program execute हो जाएगा, that time the thread has been properly, what do we say, exited or terminated from there. Then our next, which is question number 3, define package and how to create a user defined package with an example. So what is package exactly? It is a collection of related classes or interface, okay, used to organize code and avoid name conflicts. बार बार नेम कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए और उसको प्रॉपरली रीयूज एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए कोड यूज किया जाता है. नाउ फॉर दिस वी आर जस्ट गोना डू द प्रैक्टिकल फर्स्ट. ओके. I'm just cancelling this. Now, after coming here, we are going to make a file named, okay, a file named my class. So first, we are going to make a folder, okay, direct a file, okay, my class, ठीक है, my class, that's all, dot java. In this, पहले तो हम ये ठीक है इतना ब्लॉक, यहाँ पे पहले हम दे देंगे अपने पैकेज का नाम. ये पैकेज हमेशा एक पैकेज कीवर्ड से ही यूज होता है. ओके. सो फर्स्ट PACKAGE. सो पैकेज का नाम दे देता है लाइक माय पैकेज एज यूजुअल. अब ये रेड आ रहा है, डोंट वरी, विल सॉल्व दिस. ओके. आफ्टर दिस हम इसमें एक मेथड दे देंगे विच इज पब्लिक वॉइड माय मेथड, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड बोल दिया. दैट्स ऑल. इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ. आफ्टर सेविंग दिस, कंट्रोल S. Okay, after saving this we are going to run this. So हम क्या लिखेंगे? javac and then my class dot java. Okay. अब बहुत जन बोलेंगे यहाँ पे एरर्स है, एक एरर है, क्या है क्या नहीं. डोंट वरी, विल सी दैट. फर्स्ट अपना कोड यहाँ पे रन हो गया. नाउ विल बी लुकिंग हियर कि ओके, ये होने के बाद अपना डॉट क्लास नाम से एक फाइल रेडी हो गया है. विल ओपन दिस फाइल. तो ये क्या कर रहा है? कुछ फैंसी नहीं, सब नॉर्मल है. ओके. एज वी कैन सी हियर, basic code is there which we saw there. After this, as we can see, after this some things इसको रन करने के लिए we have to use this. Okay. अभी what is the difference between this command and this which I have run here? ये कमांड जो है बस वो कंपाइल करने का काम करेगा. किसको? ये पेज को. बट इसके अंदर हमेशा हमें पता है कि कोई भी अगर पैकेज बनता है तो उसका एक अलग से फोल्डर बनता है. ओके. एंड फोल्डर हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हमें फोल्डर भी क्रिएट करना है. फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर दिस जावा -d, सॉरी -d जो भी है, एंड उसके आगे ही कोड आएगा अपना. सो यहाँ पे आके हम व्हाट आर वी गोना ऐड? -d. देयर वी गो. सो नो सोर्स फाइल्स. What does it say exactly? Control S. Okay, instead of this even we can make a folder. So let us make a folder first. ठीक है. My package PACKAGE. That's all.
फिर अभी अपने जो माई क्लास है वो उसको इसके अंदर डाल देते हैं, दैट्स ऑल। फिर अपना ये जो है वो प्रॉपर हो गया है। ओके, आफ्टर दिस इज प्रॉपर वी कैन रन दिस अगेन नाउ, बट उसके लिए हमें फर्स्ट उस फोल्डर के अंदर जाना होगा विच इज़ लाइक सी डी माई PACKAG, ठीक है। So what we did, we made a folder named my package and we had gone inside that. So my PACKAGE, आफ्टर दैट इसके बाद हम वो कोड रन करेंगे। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, ये कोड रन होने के बाद वी कैन सी नॉर्मल हो गया है। अभी हम यहाँ पे कंपाइल हो गया अपना कोड। अभी इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे ना नेक्स्ट कोड। ओके, नेक्स्ट कोड। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास बना लेंगे टेस्ट नाम से, बट वो किसके, इस फोल्डर के बाहर बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव मेड अ क्लास नेम टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। टेस्ट डॉट जावा में हम क्या करेंगे, पहले उसको यहाँ पे लिख लेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, इम्पोर्ट कीवर्ड लगाया, फिर उसके बाद माई पैकेज, एंड फिर उसके बाद हमने लिया ये। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो जो मेथड्स है जो है सब कुछ क्या होगा उसके अंदर यूज़ होगा। इसके बाद हमने क्या लिया, पब्लिक क्लास टेस्ट लिया, बेसिक। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग ARGS, ओके। बेसिक इनपुट आउटपुट सब उस कॉलिंग के लिए। आफ्टर दैट माई क्लास नाम से हमने कॉल किया। माई क्लास के बाद उसमें ऑब्जेक्ट उसका जो है ड्राइवर का नेम वो दे दिया, फिर न्यू माई क्लास दिया। आफ्टर दैट वी हैव कॉल दैट ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको सेव करते हैं एंड वी आर जस्ट गोना कंपाइल दिस फर्स्ट। कंपाइल करने से पहले हम फोल्डर के बाहर आते हैं जो हम ये वाला माई पैकेज के अंदर है। सो cd dot dot and then we are gonna just compile this. So test file, so test dot java, okay. Okay, okay, okay. So अपना ये जो था माई क्लास नाम से, करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने माई क्लास दिया एंड सेम विच वॉज यर, करेक्ट। बट अपना मेथड जो है वो माई मेथड नहीं था, इट वॉज शो, करेक्ट। एक बार हम देख लेते क्या मेथड था अपना। ओके, माई मेथड, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, सी अपर केस एंड लोअर केस। सो ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अभी हम इसको कंपाइल कर देते हैं। ओके, cannot access my class object, a bad class file, no. File contains wrong class, my package dot my class, please remove or make sure it appears in the correct subtype। ओके, तो यहाँ पे कॉल करते समय हमें जैसे था वैसे ही लिख देते हैं सीधा यहाँ पे विच वॉज माई क्लास एंड विल बी सेविंग दिस, ओके। एंड सेम ये अपना जो कोड था इसमें भी हम वही करते हैं, नो फैंसी चेंजेस, जो यहाँ पे किया है एज यूजल, ओके। इसका कोड हम ये लिखे या वो लिखे बोथ आर सेम, इफ वी राइट एज एन शो डजेंट मैटर और दिस। तो व्हाट आर वी गोना डू, हम अपना जो मेन फाइल है inside this what are we gonna do, we are gonna write it as show, sorry, here in this my method, save। again we are gonna go inside that file name cd my package, फोल्डर के अंदर जाने के बाद कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल के लिए जावा एज यूजल माई क्लास डॉट जावा, फिर इसके बाद ये फोल्डर के अंदर आएंगे, सॉरी बाहर आएंगे, सो cd डॉट डॉट, उसके बाद अपना जो कोड है विच वॉज टेस्ट डॉट जावा, करेक्ट, उसको कॉल करेंगे। बट यहाँ पे हमने मेथड चेंज किया था तो इसको शो कर दिया हमने, ओके। फिर इसके बाद जावा टेस्ट वाला आएगा, सो जावा टेस्ट डॉट जावा। फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा टेस्ट। तो अभी हम वो कर देते हैं एंड सी आ हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड, मतलब हमने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड कहीं मेंशन नहीं किया था, वो कहाँ से आया, फ्रॉम यूर, ओके। तो यहाँ पे आप शो दो माई क्लास दो, इट डजेंट मैटर, यू जस्ट हैव टू कॉल इट प्रॉपरली। इसके बाद ये करने के बाद आपने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे किया है, इसके जगह पे यू कैन गिव मोर कि एडिशन का बना रहे हो, सब्सट्रैक्शन का, यहाँ पे पैरामीटर दे दो, करेक्ट, जो भी आपके पैरामीटर्स डिपेंडिंग, और उसके ऊपर यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लो एंड आउटपुट शो करवा दो, दिस इज द पैकेज एग्जैक्टली। ये होने के बाद नेक्स्ट कोड इज जावा प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to
डैश डैश डैश। इवन नंबर का पता है, जब भी कोई नंबर टू से डिवाइड रहेगा, ओके, एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाई 2, तो वो क्या है, एक इवन नंबर है, करेक्ट। सेम, अभी यहाँ पे हमने क्या दिया, इंट आई, मतलब लूप अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ तक होगा, 100 तक, और वो क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, करेक्ट, एज यूजल। और ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट, करेक्ट। यस, प्री इंक्रीमेंट मतलब आगे प्लस रहता है, पोस्ट मतलब पीछे। प्री मतलब वो पहले क्या इंक्रीज करेगा एंड फिर आई का वैल्यू यूज करेगा, वेर एज आई प्लस प्लस मीन्स दिस पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब आई का वैल्यू पहले वो यूज करेगा फिर 1 से क्या इंक्रीमेंट करेगा, सो दिस इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट यो, ओके। तो फॉर नाउ वी आर जस्ट गोना यूज दिस, फॉर दैट हम आ जाते हैं अपने इस पे, ओके। यहाँ पे आके वी आर जस्ट गोना मेक अ फाइल नेम्ड एज even डॉट जावा, दैट्स ऑल। उसके अंदर हम वही अपना कोड दे देंगे, बट इन दिस वी आर जस्ट गोना मेक सम चेंजेस। इतना होने के बाद इसमें हम लगाएंगे फॉर लूप, जिसमें हमने एज यूजल बोल दिया कि इंट आई लेंगे हम, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर सेमी कॉलन, वेर आई इज ग्रेटर इक्वल्स टू 100, बराबर। फिर आई को हमने दे दिया ये, फिर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लॉजिक बेसिक है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऐसे आएगा। 4 ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, एक यहाँ से एक बंद किया, सेकंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड का वो यहाँ पे किया, फॉर लूप का किया, एंड देन इफ का बंद किया। नाउ वी आर गोना सेव दिस, पहले कंपाइल कर लेते हैं एज जावाक देन इवन डॉट जावा, ओके सॉरी यहाँ पे, या फिर रन दिस। इसके बाद अभी हम इसको ये करते हैं, वो ब्लॉक ऑफ कोड रन करते हैं, जावा डॉट इवन। तो इसने मुझे क्या ऐसे इतने नंबर्स दे दिए विच आर इवन नंबर्स। नाउ आई वांट सब प्रॉपर है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब मेरे आउटपुट क्या प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कोड क्या अपना, विच इज इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस रहते हैं, वो इनहेरिट होते हैं किससे, पेरेंट क्लास से। एग्जाम्पल, अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका मेन ओके टेस्ट में ही ले लेता है, ठीक है। सो टेस्ट डॉट जावा में आ जाते हैं हम लोग, इसमें से जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड का। फर्स्ट अपना एक मेन क्लास रहेगा नेम्ड व्हीकल, सो क्लास व्हीकल, ओके। व्हीकल में क्या करेगा, वो व्हीकल स्टार्ट कर रहा है। सेकंड यही क्लास क्या होगा, इनहेरिट होगा, मतलब यही नहीं, क्लास कार एक्सटेंड होगा, सो क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, बट किसको, कार को स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर एक कार क्या और एक ये करेगा, फिर क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, और बाइक क्या हो रही है, अभी स्टार्ट हो रही है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस अब क्या बचा अपना, बेसिक पब्लिक क्लास बचा, तो यहाँ पे आके वी आर गिविंग पब्लिक क्लास, ठीक है। पब्लिक क्लास को हमने क्या बोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, उसके अंदर वो सब दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक व्हीकल जो अपना है, करेक्ट, उसको हमने बोला व्हीकल माई कार, ठीक है। उसकी जगह पे मैं ले सकता हूँ कैपिटल वी। व्हीकल माई बाइक है, इसके लिए मैं ले सकता हूँ कैपिटल बी, ओके। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिया, देन यहाँ पे कैपिटल वी लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। व्हीकल क्या अपना मेन क्लास है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर, ओके। देन फिर अपना आता है न्यू कार, ओके, न्यू कार, उसका वही ड्राइवर का, ये तो सबको पता ही होगा बेस, करेक्ट, ड्राइवर कोड जिसको हम बोलते हैं यूजुअली। आफ्टर दैट जो भी है अपने मेथड्स उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन विल जस्ट रन इट सॉरी। सो जावाक जावाक टेस्ट डॉट जावा, सॉरी जावा, देखो रन हो गया। इसके बाद उसका उतना ब्लॉक ऑफ कोड विच इज टेस्ट नाम से वो रन करेंगे। तो कार स्टार्टेड, बाइक स्टार्टेड, आई थिंक सो सबको समझा, यस गाइस। तो इसमें मेन कौन सा, कार स्टार्ट हुआ, बाइक स्टार्ट हुआ, बट व्हीकल स्टार्टेड ये नहीं आया, करेक्ट, बिकॉज हमने वो जो मेथड है विच वॉज लाइक ये वाला, उसको नीचे कॉल नहीं किया, फॉर दैट रीजन, ओके। आई थिंक सो आई एम प्रॉपर, ओके। फिर
ठीक है, अभी के लिए हमें कितना मल्टी लेवल, सॉरी हायरार्किकल था, करेक्ट। मतलब हमने क्या बस व्हीकल से दो डिराइव किए, या फिर दो को इनहेरिट किया इन शॉर्ट। फर्स्ट वाज आर कार, ओके, सेकेंड वाज बाइक, वही हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ट्राई कैच एंड फाइनली। तो फर्स्ट इनका मीनिंग देख लेते हैं। सी, ट्राई मतलब क्या, कंटेन्स द कोड दैट में कॉज एक्सेप्शन। जो कोड एक्सेप्शन कॉज कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड। देन कम्स कैच। कैच क्या करता है, हैंडल्स द एक्सेप्शन इफ इट अकर्स। अगर कुछ होने वाला होगा एक्सेप्शन, तो कौन से ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा, कैच के। देन कम्स फाइनली, मतलब जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर कुछ भी एक्सेप्शन आएगा, भले वो आए या ना आए, अकर्स और नॉट, बट वो किसके अंदर आएगा, इट विल बी अंडर फाइनली। एंड ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड और फाइनली में डिफरेंस क्या है, उसमें ब्लॉक ऑफ कोड कंटेन करता है, बट वो कब एक्सेप्शन देता है, जब जरूरत होती है, और ये फाइनली कब देता है, जब हो या ना हो, ऐसे। ओके, अभी कोड पे आ जाता है सीधा, एंड लेट अस यूज दिस। तो फर्स्ट हम एक फाइल बना लेते हैं, करेक्ट, नेम्ड एज यूजुअल डेमो। तो डेमो डॉट जावा, देयर वी गो, एग्जिस्ट करता है पहले से। तो ठीक है, हम डेमो डॉट जावा को यूज़ कर लेते हैं। यस, इसके अंदर पहले से कोड है अपना, करेक्ट। तो डेमो नाम से एक है, दो वेरिएबल्स अपने जो है वो हमने दे दिए, विच इज दिस एंड दिस। उसके बाद उसके जगह पे हम इतना ब्लॉक ऑफ कोड लगा देते हैं, बेटर, करेक्ट। सो देयर वी गो, इसमें हमने क्या लगाया, फर्स्ट ब्लॉक विच इज ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक के बाद हमने क्या दिया है, वी हैव गिव कैच ब्लॉक, एंड देन कम्स अ फाइनली। ठीक है, सो फर्स्ट ट्राई ब्लॉक में क्या हो रहा है, वो ट्राई कर रहा है इन, सॉरी 10 को 0 से डिवाइड कर रहा है, और जो उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो किस में स्टोर होगी, वेरिएबल ए में। ओके, ये क्या है, ट्राई ब्लॉक का काम है। उसके बाद कैच ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, वी नो दैट, करेक्ट। इट हैंडल्स द एक्सेप्शन, यहाँ पे लिखा है इफ इट अकर्स, अगर कुछ होगा एक्सेप्शन तो वो हैंडल करेगा, कौन, कैच ब्लॉक। तो इसका एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्शन कॉस्ट, कॉट, सॉरी कॉट नॉट कॉस्ट, मतलब वो जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा, काइंड ऑफ। एंड देन फाइनली, फाइनली में क्या आएगा, क्योंकि फाइनली अपना ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो गया, रन हो गया है। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं, एंड विल बी रनिंग दिस। ओके, तो जावा डेमो डॉट जावा, फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के लिए हम बस क्या लिखेंगे, क्लास का जावा और क्लास का नाम, करेक्ट, सॉरी, हाँ, जावा डेमो। तो अपना ये कोड यहाँ पे रन हो गया है, करेक्ट, थिंग्स आर प्रॉपर, वही, और कुछ डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोड क्या अपना, फाइंड द प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर। हमें एक नंबर दिया जाएगा, उसका रिवर्स फाइंड करना है। तो आ जाते फाइल बनाते हैं, नेम्ड rev.java, rev.java, ओके, मतलब रिवर्स के लिए। इसके अंदर क्या होगा भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args। उसके बाद हमारे पास जो भी आया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हमारे पास ये इंटीजर है, इंटीजर n नाम दे दिया है, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 दे दिया है 5 तक। ओके, वो देने के बाद हमने बोला कि उसके बाद जो और एक रेव रहेगा, REVV, उसको डबल वी दे देते हम लोग। ओके, मतलब रिवर्स्ड, उसको जीरो कंसिडर किया है, स्टार्टिंग में उसको जीरो कंसिडर किया हमने। फिर उसके बाद हम लगाएंगे वाइल ब्लॉक ऑफ कोड। वाइल में वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट इफ आपका वाइल में n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर आपकी n की वैल्यू जो यूजर ने दी है इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो आगे का ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, रन होगा, अगर वो रहेगी तो नहीं होगा, बेसिक। उसके बाद हमने इसके अंदर, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस लेट अस यूज द अबव लॉजिक, REVV, ओके, या फिर इसकी जगह पे सीधा R यूज करते, कैपिटल R, बेटर फॉर द रिजल्ट। कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल्स टू आर इंटू 10, पहले वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको n के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको वो प्लस होगा। ओके, कैसे होगा हम आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब क्या है, यर n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। ओके,
This is not equals to, this is assignment operator. Okay, this is basic arithmetic operators guys. आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर दूं. आफ्टर दिस जो जो चीज़ें हुई, अभी हमें प्रिंट को रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो फिर वाइल ब्लॉक होने के बाद यहाँ पे हम एक दे देंगे सिस्टम डॉट वाला. ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा रिवर्स नंबर को. ओके, और ये ब्लॉक ऑफ कोड बार बार चलते रहेगा जब तक हमें अपना रिवर्स स्ट्रिंग नहीं मिलता है. सो व्हाट आर वी गोना डू, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं. उसके लिए वी आर गोना राइट जावाक और फिर अपनी फाइल का नाम विच इज REV कैपिटल, ये वाला. करेक्ट. देन एंटर. कंपाइल्ड हो गया कोड. कंपाइल होने के बाद इट विल बी योर सी जावा सॉरी रेव डॉट क्लास नाम से फाइल बन गया ऐसा. ओके, जहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक डेटा टाइप्स वगैरह चेंज हो जाते हैं यहाँ पे. यस, कंपाइलेशन के बाद. एंड देन यहाँ पे जो जो चीज़ें दिख रही है, तो हम पहले यहाँ पे अभी कोड को रन करते हैं. तो जावा का C हटा देंगे और अपना ब्लॉक ऑफ कोड क्या है REV, तो उसका नाम डाल दिया और एंटर. तो अपना रिवर्स स्ट्रिंग आ गया. करेक्ट. वही अगर हमें इसका बड़ा नंबर है तो हम अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 2 ways ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा. जावा में अगर थ्रेड बनाना है तो उसके 2 अलग अलग टाइप्स है. फर्स्ट अपना क्या है, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास. अपने पास थ्रेड क्लास जो रहेगा उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. यूजिंग व्हाट एग्जैक्टली, यूजिंग इनहेरिटिंग इट. तो इनहेरिट कैसे करेंगे, या फिर उसको ओवरराइड जो है वो कैसे करेंगे, यूजिंग दिस रन मेथड. रन मेथड से हम उसको क्या करेंगे, इनहेरिट या फिर ओवरराइड करेंगे. इनहेरिट फ्रॉम द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड इट in run method. Second, each instance of this class represents a separate thread of execution. इस क्लास की जो भी क्लासेस रहते हैं उनका एक अपना सेपरेट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन रहता है. ओके, फिर उसके बाद क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड. कोड आ गया यहाँ पे अपने पास अभी. ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. यस, इसके पहले हम इसका नाम देंगे GFG. ओके, देन आगे फाइल क्रिएट करते हैं नेम्ड एज gfg.java. ओके, इसके अंदर फर्स्ट इतना ब्लॉक ऑफ कोड साइड में रहने दो, हमें अपना मेन चीज़ लिखना है विच इज़ थ्रेड का. तो यहाँ पे आते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं क्लास माई थ्रेड. ओके, माई THERED एक्सटेंड्स. वो क्या एक्सटेंड्स कर रहे हैं, थ्रेड को. करेक्ट. THREAD थ्रेड कर्ली ब्रेसेस के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट, जो क्या कर रहा है, ओवरराइड करेगा. करेक्ट. तो लेट अस ऐड दिस @override O capital because it is in case sensitive. ओके, ओवरराइड के बाद क्या ओवरराइड कर रहे हो, तो पब्लिक अपना जो है पब्लिक वॉइड रन. करेक्ट. इसमें हमने कुछ फॉर लूप लगा दिया है कि ये कितने बार रन होगा माई थ्रेड, जब तक मतलब आई का जो वैल्यू है वैसे. इसकी जगह पे हम बेसिक दे सकते थे, ये हटा दे फॉर लूप, बेटर, बट हटा ही देते हम लोग. ओके, इसमें क्या प्रिंट होगा, दैट दिस इज द थिंग. ओके, इसका फॉर लूप ही हटा देते हैं. ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज द माई थ्रेड करके. ये होने के बाद हमें इसमें और एक चीज़ ऐड करना है विच इज़ व्हाट, यहाँ का एक ब्रैकेट, इसकी वजह से एरर आ रहा था. तो ये थ्रेड पहले हमने ये कर लिया. फिर अभी जो थ्रेड है उसको कॉल आउट करेंगे. किस में कॉल आउट करेंगे, GFG जो अपना मेन क्लास है. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इस क्लास में, और भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड वो सब लगा देंगे. फिर इससे में हमने बोला माई थ्रेड, जो ये क्लास है अपना माई थ्रेड नाम से, उसको हमने T1 नाम दे दिया अभी के लिए, और वही न्यू एक क्रिएट कर दिया. फिर हमने बोला T1.start. करेक्ट. T1 डॉट हमने क्या बोला, स्टार्ट बोला, और इसको अभी हम सेव कर देते हैं. ठीक है, Ctrl+S रन करेंगे. सो एज यूजुअल जावा अपने फाइल का नाम n.java. ओके, अब इसके बाद हम लिखेंगे जावा एंड अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, इसका नाम क्या है, पब्लिक क्लास का नाम, वो हम लिख देंगे विच इज ओके. तो आ गया माई थ्रेड, मतलब ये क्या, मेरे थ्रेड को रन कर रहा है. ओके, जब इतने चीज़ का काम हो जाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा.
तो एक बार ऊपर का रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली। इसमें क्या क्या था? फर्स्ट एक थ्रेड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, बेसिक क्रिएट हो गया। फिर वो रनेबल है, द इट इज़ रेडी टू रन, अभी क्रिएट कर दिया, वो रेडी टू रन है। ओके, फिर इसके बाद अपने पास और एक पार्ट आता है विच इज़ रनिंग। अभी ओके एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा थ्रेड, करेक्ट, सॉरी, यस, मेरा थ्रेड अभी क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा था प्रॉपरली, करेक्ट, हाँ दिस वन, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर इसके बाद वेटिंग एंड ब्लॉक, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 3-4 थ्रेड बनाए, पहला थ्रेड मेरा ये है, सेकंड मेरा थ्रेड हो सकता है रनिंग थ्रेड करके, करेक्ट, रनिंग द थ्रेड। फिर आएगा मेरा रनिंग अनदर थ्रेड, अनदर थ्रेड मेरा रन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा पहले होगा एडिशन, मतलब अलग अलग थ्रेड्स बनेंगे प्रॉपरली। ओके, फिर होगा मेरा माइनस। तो जब तक मुझे तो पता है मेरा एक पर्टिकुलर डेटा है, इतना डेटा पे पहले मैं एडिशन करूँगा, फिर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, मतलब जब तक मैं एडिशन कर रहा हूँ तब तक मुझे ये ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है। तो तब तक ये क्या होगा, वेटिंग या फिर ब्लॉक पे रहेगा। द थ्रेड इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, जब तक उसके पास डेटा नहीं आएगा या फिर उतना वो काम करने का टाइम नहीं आएगा, इट इज़ नॉट गोना वर्क एट दैट मोमेंट, उतने टाइम तक वो क्या वेटिंग पे रहेगा। एंड आफ्टर, जैसे अभी ये प्लस का काम हो गया तो क्या होगा कि टर्मिनेट हो जाएगा उतना थ्रेड। एग्जाम्पल, अभी ये मेरा माइनस का काम हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। सो ये थ्रेड ऐसे वर्क करता है, ये सिंपल 5 स्टेप्स में। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ इट। इस डायग्राम में भी सेम है, एक्वायरिंग अ लॉक, वो लॉक एक्वायर करता है जब ज़रूरत नहीं होती है, और जब होती है तब वो कर लेता है डिपेंडिंग। जब उसको नीड है तो वो थोड़ा होल्ड पे रहेगा, जब नहीं है इट इज़ गोना वर्क देयर। सेम नोटिफिकेशन, जब भी इसको यूज़ करना होगा, अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन इज बीन एक्वायर्ड एंड इट इज़ बीन यूज्ड। ओके, सेम टाइम आउट, अभी अगर मुझे इतना ही प्रिंट करना है माई थ्रेड, तो वो प्रिंट करके भाग जाएगा। बट अगर उसको इतने सारे नंबर्स प्रिंट करने रहेंगे, इवन नंबर्स 1 से लेके 100 तक, तो वो वेट करेगा ना 3 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, जब तक वो प्रिंट नहीं होता। जब वो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टाइम वेटिंग, मतलब टाइम आउट जब हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अब ये वाला थ्रेड जो है प्लस का काम हो गया, अब क्या किसका काम है, माइनस का। तो ये ऐसे थ्रेड का काम वर्क करता है। ओके, एंड देन ये अपना कौन सा था, दिस वन। ओके, एक्सटेंडिंग दी थ्रेड क्लास, तो हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है। अब इसमें अपना सेकंड मेथड भी है विच इज इम्प्लीमेंटिंग दी रनेबल इंटरफेस, तो इसके अंदर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो सेम अपने क्लास का जो नाम है वो हम सेम ही रखते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास माई रनेबल। ओके, या फिर सब हटा देते हैं, बेटर, क्लास माई रनेबल, RUNNEABLE, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ओके, फॉर लूप एज यूजल, हमें ज़रूरत नहीं है फॉर लूप की, सो वी आर गोना रिमूव दिस फॉर लूप, बेसिक। ये होने के बाद इतना ब्लॉक ऑफ कोड हो गया अपना। इसके बाद अपना जो मेन था विच वॉज पब्लिक डेमोनी, इट वॉज GFG, फाइल का नाम जो रहता है इट इज़ ऑलवेज दैट ओनली। इसके बाद हमने लगा दिया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ERGS वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा जो माई रनेबल थ्रेड है, ओके, अब यहाँ पे बस मैंने नाम अलग लिया है। क्यों नाम अलग लिया है, जस्ट फॉर दिस रीजन, अभी तक मैंने इसमें ओवरराइड का ऐड नहीं किया है, तो पहले वो भी कर लेते हैं। जब तक वो ओवरराइड नहीं करेगा तब तक थिंग्स, ओके, O कैपिटल OVRD, करेक्ट, ओवरराइड। ओके, इसको सेव कर दिया, ओवरराइड किया इसने। आफ्टर ओवरराइडिंग, अरे अरे यार ये भी ना, हाँ ऐड ही कर देते फॉर लूप, ठीक है कोई ना। ओवरराइड किया कौन से फंक्शन को, रन फंक्शन को। किस में किया, माई रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट किया था रनेबल में। तो किस में हम लोग इसको ओवरराइड कर रहे हैं, इन रनेबल। रनेबल में ओवरराइड करने के बाद क्या ओवरराइड हो रहा है, ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर क्या फॉर लूप है जो क्या प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक, हाँ मोस्टली नंबर्स एंड या पोस्ट इंक्रीमेंट प्रॉपर 1 से लेके 5। ओके, उसके बाद थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 ऐसे वो मोस्टली। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, पब्लिक क्लास GFG एज यूजुअल, यहाँ पे जो लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड। फिर माई रनेबल, इसको हमने नाम दे दिया माई रनेबल, इसके जगह पे हम इसको T भी नाम दे सकते थे, करेक्ट। अगर हम T नाम दे देते तो यहाँ पे भी हमें क्या सब जगह TT लेना पड़ता, जहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे भी क्या लेना पड़ता, T, सेम ईयर।
एज टी. ओके, यहाँ पे भी क्या आता, वी विल बी यूजिंग टी, बट इसका जो आएगा वो क्या आएगा, T1 आएगा. एंड देन सेम, अगर ये स्टार्ट है, देयर वी गो, कंट्रोल एस. अब हम इसको रन करते हैं द ब्लॉक ऑफ कोड. तो फर्स्ट इसके लिए हम लिखेंगे एज यूजुअल जावाक, देयर वी गो जावाक, देन आर अपना ये नाम, फाइल का नाम विच इज gfg.java. ओके, रन होने के बाद सीधा हम लिख देंगे जावा एंड अपना ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब पब्लिक क्लास का नाम क्या है ये, तो वही हम सीधा लिख देंगे विच इज gfg. एंटर. सॉरी, वो फिर से यही आ गया. या तो अपना ये कितने 5 बार रन हो गया कि थ्रेड इज रनिंग, थ्रेड इज रनिंग, बराबर. सो दिस इज हाउ. इसमें मैं और एक थ्रेड लगा सकता हूँ कि क्या 1 से 5 तक क्या ये कर रहा है कि थ्रेड इज रनिंग. इसके बाद करेगा थ्रेड 2 इज रनिंग. ओके, फिर उसके बाद करेगा थ्रेड 3 इज रनिंग, मतलब जब तक ये रन नहीं होगा तब तक दूसरी थ्रेड नहीं रन होगी, और जब तक वो नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी. तो ऐसे ही इसका साइकिल जो है वो रन होता रहता है. अभी बहुत जन बोलेंगे इसमें और जो पहले वाला था, इसमें हमने क्या इंटरफेस से क्या इसको इम्प्लीमेंट किया, रनेबल इंटरफेस से, और उसमें हमने माई थ्रेड क्लास से क्या इम्प्लीमेंट किया था, सॉरी ये थ्रेड्स क्लास से. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसमें एक्सटेंड किया है, इम्प्लीमेंटिंग, और यहाँ पे हमने एक्सटेंडिंग किया है. ओके, तो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, बेसिक. ठीक है, सो गाइस लुक हियर. फर्स्ट, एक्सटेंडिंग थ्रेड में हमने क्या किया, उसको इनहेरिट किया, बट रनेबल में क्या किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया. इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड, इनहेरिट करना दोनों अलग होता है. ओके, देन इनहेरिटेंस लिमिट, इसका लिमिट क्या है, थ्रेड कांट बी एक्सटेंड टू अनदर क्लास. इसको दूसरी क्लास में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, पर वही रनेबल में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, फिर उसका ऑब्जेक्ट शेयरिंग क्या है, रनेबल अलाउस मल्टीपल थ्रेड्स टू शेयर सेम ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए अपना जो है रनेबल वो अलाउ करता है. ओके, सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड्स शेयर करने के लिए, बट वही जो थ्रेड रहता है वो नहीं करता, किस में, इसमें एक्सटेंडिंग में. ओके, देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी. रनेबल इज मोर फ्लेक्सिबल, बट थ्रेड क्या इतना लेस फ्लेक्सिबल है. उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो अगर दूसरे क्लास को अलाउ ही नहीं कर रहा है टू रन प्रॉपरली. सो या, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर दोनों कोड में कुछ पूछा जाए तो. एंड या, देयर वी गो, आवर क्वेश्चन बैंक इज डन. या गाइस, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा जस्ट कमेंट बिलो, और इसको 5 मिनट्स में ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा. सो ड्राइव का लिंक चेक बिलो इन द कमेंट्स. ओके, बाय गाइस.